السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ملاوٹ سے پاک پنجاب مشن کے تحت دودھ فراڈ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں ڈپٹی چیف رپورٹر سید شہباز کی رپورٹ میں۔ آج بالکل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے علل صبح لاہور کے داخلی راستوں کی کڑی ناکہ بندی کی گئی، جس پر 82 سپلائز کا شہر میں آنے والا دودھ 2 لاکھ لیٹر سے زائد دودھ چیک کیا گیا۔ 8 سپلائز کو 1,05,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ 2 سمپل تفصیلی جائزے کے لیے لیبارٹری بھجوائے گئے۔ ڈی جی فوڈ نے کہا ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ فیل ہونے پر بند ہونے والی ملک شاپس کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ تلف کردہ سفید محلول کو صارفین کی فروخت کیا جانا تھا۔ پاؤڈر کیمیکلز ناقص گھی سے جعلی دودھ تیار کرنے کے لیے گاڑھا محلول تیار کیا گیا تھا۔ دودھ میں پانی، پاؤڈر، ویجیٹل گھی، کیمیکلز کی ملاوٹ سنگین جرم ہے۔ جعلی دودھ میں استعمال ہونے والے اجزاء انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق معیاری دودھ کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ دودھ میں جعل سازی کا مکروہ دھندا کرنے والوں کے تمام ہتھ کنڈے ناکام بنائے جا رہے ہیں۔ دودھ کے نام پر سفید محلول کی تیاری اور فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے اور پنجاب کو ملاوٹ سے پاک بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس نے لاہور سمیت صوبہ بھر میں منظم جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 گینگز کے 9 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کے قبضے سے کلاشنکوف، پسٹلز، رائفلز، ریوالورز اور بندوقوں سمیت 93 ہتھیار اور سینکڑوں گولیاں برآمد ہوئی، جبکہ 2 گاڑیاں، 6 موٹر سائیکلیں، 12 موبائل فونز، 4 مویشی اور 10 لاکھ روپے نقدی بھی ضبط کی گئی۔ کارروائیوں کے دوران ایک مجرم ہلاک اور 7 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ لاہور پولیس نے کرسمس اور نیو ایئر سے قبل ہوائی فائرنگ اور ناجائز اسلحے کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرتے ہوئے گزشتہ 20 دنوں میں ناجائز اسلحہ رکھنے والے 496 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ ہوائی فائرنگ میں ملوث 5 افراد بھی زیر حراست لیے گئے۔ ترجمان کے مطابق شہر کے مختلف تھانوں میں 501 مقدمات درج کیے گئے اور گرفتار ملزمان کے قبضے سے 11 رائفلز، 451 پسٹلز اور 24 گنیں بھی برآمد ہوئیں۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیقی میانہ نے واضح کیا کہ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر زیرو ٹالرنس ہوگی اور ناجائز اسلحہ رکھنے، استعمال، خرید و فروخت اور سوشل میڈیا پر تشہیر کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور میں 6ٹھی گریجویشن تقریب کا پروقار انعقاد ہوا، جس میں مختلف فیکلٹیز کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کو ڈگریاں دی گئی۔ تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد خان، سینئر افسران، فیکلٹی ممبران، معزز مہمانان اور والدین نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے یونیورسٹی کی معیاری تعلیم اور طلبہ کی کامیابیوں کو سراہا ہے۔ دوران تقریب انڈر اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے طلبہ کو ڈگریاں اور شاندار کارکردگی دکھانے والوں کو گولڈ میڈلز، میرٹ سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ وائس چانسلر نے فیکلٹی، والدین اور انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا ہے اور تقریب کا اختتام فارغ التحصیل طلبہ اور یونیورسٹی کی ترقی کے لیے دعا کے ساتھ ہوا ہے۔ بھارتی وزیر اعلیٰ کے مسلم خاتون کے حجاب اتارنے کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں عارف والا سے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ میں۔ بھارتی وزیر اعلیٰ کے جاہلانہ رویے کے خلاف آرے والا میں فرنٹیئر کالج سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں انجمن آڑتیان سمیت ہر شعبہ سے منسلک افراد نے بھرپور شرکت کی اور بھارتی وزیر اعلیٰ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چوہری اجمل گجر، صدر انجمن آڑتیاں گلا منڈی آرے والا اور فرنٹیئر کالج کے سی ای او چوہری ناصر امین نے اپنے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت میں آئے روز خواتین کی تذلیل کے واقعات دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بھارتی ریاست کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک مسلم ڈاکٹر خاتون کے حجاب اتارنے کا غیر اخلاقی، غیر انسانی واقعہ پیش آیا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے اور اس جاہل وزیر اعلیٰ کو فوری عہدے سے ہٹایا جائے۔ ریلی میں شرکا نے ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر مذمتی نعرے بھی درج تھے۔ شرکا نے نعرے بازی بھی کی، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد،
اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایسے انسان کو فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے منصب سے ہٹایا جائے جو انسانی اور اخلاقی حدود کی پامالی کرتا ہے۔ منشن آباد میں حلقہ پی پی 237 ایم پی اے کے امیدوار میاں راشد محمود جو گزشتہ روز ہارٹ فیل ہونے سے انتقال کر گئے، آج گلخانی کی محفل ان کے آبائی گاؤں میں کرائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے چودھری اسماعیل۔ میں موجود ہوں حلقہ پی پی 237 محمد پور سنسارا میں۔ میرے ساتھ ایم پی اے میاں انعام باری شوکت لالے کا صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ میاں راشد جو اس دنیا فانی سے رخصت پا گئے، ان کی زندگی کے حوالے سے ان کا کیا اظہار خیال ہے؟ سر کیا کہنا چاہیں گے میاں راشد؟ چاچو راشد اس عوام کے لیے، اس حلقے کے لیے، میرے لیے ایک بازو تھے، ایک پیاری شخصیت تھی جو دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ انسان کا جو جنازہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کی اصلیت بتا دیتا ہے۔ اتنا ہزاروں لوگوں کی شرکت تھی اس جنازے میں اور ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ اس بندے نے پوری زندگی مشکلات کا سامنا کر کے، غریبوں کا ساتھ دے کر، غریبوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر، اور اپنے حلقے کی عوام کو اور اپنے دوست احباب کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی ان کے چہرے پر میں نے پریشانی دیکھی۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے تھے اور دوسرے لوگوں کا حوصلہ بلند کرتے رہتے تھے۔ میرے تمام دوستوں سے اور احبابوں سے اور بزرگوں سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس وقت ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، اور کوئی صدقہ جاریہ اگر ہو سکے، کوئی صدقہ ان کے نام پہ ہو سکے تو وہ بھی جو سے کائنڈلی دیں، اور اللہ کرم کرے گا۔ راشد ملکوکے کا مشن انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دنیا کبھی ختم نہیں ہوتی، دنیا میں انسان، پیارے انسان چلے جاتے ہیں، انسانوں کا دکھ ہوتا ہے، انسانوں کی کمی محسوس ہوتی ہے، کام تو دنیا کے چلتے رہنے ہیں۔ میرے ساتھ راؤ کاشف رحمان ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں منڈی صادق گنج سے، جو میاں راشد محمود کے درینہ ساتھی بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے پاس تو ذاتی طور پہ الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ دنیا کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی دنیا کے ساتھ اس کا سیاسی معاملات تھے، اس کے سیاسی جنون اور محبت تھی جس سے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، لیکن میرا تو وہ یار تھا، دوست تھا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمراز تھا، ہم نوا تھا۔ جب بھی کسی وقت بھی ضرورت ہوئی، کسی وقت بھی کوئی بھی معاملہ ہوا، اس سے پوچھ کے، اس کے ساتھ مشاورت سے مجھے بلا کے رات کو 3 بجے تک ہم نے اکٹھے بیٹھ کے، مطلب 25 سال کی رفاقت تھی اور دوستی تھی۔ بازو تھا جو کٹ گیا۔ بس آپ اور دوست حلقے کی عوام کی خدمت کے لیے انشاءاللہ اس کے مشن کو دل و جان سے پہلے سے زیادہ بڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے۔ جس طرح اس کے ساتھ مل کر کیا، اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اس مشن کو جاری رکھیں گے، اور آپ سب سے دعا سے اپیل ہے کہ اس کے لیے دعا ضرور فرمائیں، مہربانی۔ ساتھ اس وقت لالے کا گروپ کے میاں عمر زمان لالے کا صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے تحصیل منچنا آباد میں، جو کہ پہلے ہی عوام کو کافی ساری مشکلات کا سامنا تھا، جن کا جو میاں راشد بٹو صاحب ہیں وہ مقابلہ کر رہے تھے، اپنے جو ورکر ہیں ان کا ساتھ دے رہے تھے، کیا ان کے جانے کے بعد ابھی بھی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کون ساتھ دے گا حلقہ پی پی 237 میں عوام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ میاں راشد محمود بٹو کی سیر انگیز شخصیت تھی، ان کا خلا پر کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ہم سب انشاءاللہ مل کے جو مشن میاں راشد محمود بٹو صاحب شروع کر کے گئے ہیں، ان کے بھائیوں کی قیادت میں، پیر بننے والا میاں سید احمد شاہ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اور یہ ہمارے مرحوم میاں عبدالستار لالے کا صاحب کا مشن تھا کہ تحصیل منچنا آباد کو آزادی دینی ہے، اور اس کو آگے پایا تکمیل میاں راشد صاحب نے کیا، اور انشاءاللہ میاں راشد صاحب کے سارے دوست انشاءاللہ تحصیل منچنا آباد کو میاں راشد محمود بٹو بن کے دکھائیں گے۔ میاں راشد محمود بٹو کا ہر بھائی، ہر دوست انشاءاللہ راشد محمود بٹو ہے، اور انشاءاللہ اب کئی راشد محمود بٹو تحصیل منچنا آباد میں آپ کو نظر آئیں گے،
اور इंशाअल्लाह इस तहसील मिचनाबाद को हम मुकम्मल आज़ाद करके इंशाअल्लाह दम लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर मियाँ राशिद महमूद मलकोका भट्टू साहब के जो भाई हैं तारक महमूद भट्टू साहब, क्या वो मियाँ की जगह पर अब मिंचनाबाद में यहाँ पर अवाम के साथ खड़े होंगे? जी इंशाअल्लाह ज़रूर खड़े होंगे। मियाँ तारिक महमूद भट्टू साहब मियाँ राशिद महमूद साहब भट्टू साहब के भाई थे, बाप थे, उनके उस्ताद थे और वो पूरी सलाहियत रखते हैं। मेरे भी बड़े भाई हैं, हम सबको उंगली से पकड़ के चलाना उन्होंने सिखाया और इंशाअल्लाह उनका खिलाफ पुर करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात की, अल्लाह ताला की मदद को शामिल करके हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह तहसील मिचनाबाद की महरूमियाँ इंशाअल्लाह मियाँ राशिद का मिशन इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। ये थे मियाँ उमर जमान लाले का, जिनकी आप बात सुन रहे थे कि मियाँ राशिद महमूद मलकोका भट्टू साहब का जो खला है इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे और अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया चौधरी इस्माइल, हमें अपडेट करे थे। ओकाड़ा में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इनामी डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 9,50,000 रुपये मालियत का माल मसरूका और 4 पिस्टल बरामद हुए, जबकि गिरफ्तार अफराद ने चौरस्ता मियाँ खां और गिरदोनवा में दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी किया है। DPO ओकाड़ा राशिद हिदायत ने पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई पर टीम को शाबाशी भी दी। ओकाड़ा में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 साल कबल अगवा होने वाली खातून को बाहिफाजत ज़िला कसूर से बाजियाब करा लिया। कार्रवाई ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से की गई। पुलिस की मुसलसल मेहनत और पेशा वराना हिकमत अमली से अगवा केस हल हुआ। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने कामयाब कार्रवाई पर थाना सदघरा पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाशी भी दी है। छांगा मांगा में निजी उल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल मुगलपुरा लाहौर के ज़ेर एहतमाम अख्तर हॉस्पिटल छांगा मांगा में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में मुस्तहिक अफराद के लिए आंखों का मुफ्त मुआयना, अद्वियात, चश्मे और लेज़र्स के ज़रिए फ्री ऑपरेशंस भी किए गए। कैंप में 800 मरीज़ों की आंखों का चेकअप किया गया, जबकि 35 मरीज़ों के कामयाब ऑपरेशन भी किए गए। इंतज़ामिया के मुताबिक छांगा मांगा में 8वां जबकि पंजाब भर में 706वां फ्री आई कैंप है। शहरियों ने इस इक़दाम को गरीब और नादिर अफराद के लिए काबिल तहसीन करार दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी मुगलपुरा की तरफ से आज ये 706वां कैंप है और छांगा मांगा की तारीख में ये 8वां कैंप है, जो कि मरहूम हाफ़िज़ शफ़ीकुर रहमान साहब ने ये शुरू किया था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और आज के कैंप में हम पेशेंट को फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, फ्री ग्लासेस दे रहे हैं और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको यहाँ पे फ्री ऑपरेशन मौके पे ही किए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आज तकरीबन हमारा टारगेट जो है मिनिमम 50 ऑपरेशन का टारगेट है और 700-800 पेशेंट की OPD होगी। जिनको ऑपरेशन होगा कल इनका फ्री दोबारा पोस्ट ऑप चेकअप भी होगा। अल एहसान में हर किस्म का ऑपरेशन मुमकिन है जो पाकिस्तान में हो सकता है। अल एहसान अब तक 700 से ज़्यादा कॉर्निया भी ट्रांसप्लांट कर चुका है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारा हर संडे कहीं ना कहीं कैंप होता है और 24 मई तक हमारे तमाम संडे बुक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबूबकर शफीक है। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कैंप करवाते हैं, जिसकी बुनियाद जो है वो मेरे वालिद साहब मौलाना शफीकुर रहमान फ़र्रख रहमहुल्लाह ने की। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 8 साल पहले यहाँ पे पहला फ्री आई कैंप शुरू हुआ छांगा मांगा में, जिसमें चंद अहबाब ने शिरकत की चूँकि लोगों को पता नहीं था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा कैंप होता रहा और उसकी मिकदार बढ़ती बढ़ती 100 से 1000 प्लस में आ गई और इस साल हमारा 8वां आई कैंप है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्री अद्वियात जो कि हमें अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल मुगलपुरा वाले हमें दी हैं चीज़ें, उनमें फ्री एनके हैं, फ्री अद्वियात हैं और ऑपरेशन है मोतिये के। पिछले सालों में ये होता था कि चेकअप यहाँ पे होता था और ऑपरेशन के लिए हमें लाहौर जाना पड़ता था। इस साल एक सहूलत का मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, वो ये है कि हमें उन्होंने मोबाइल ऑपरेशन वाली जो गाड़ी है वो मुहैया की है यहाँ पे। साहिवाल में तारीखी शहर हड़प्पा के कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया का राज है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा शहर तारीखी शहर में मौजूद है। सुथरा पंजाब की कारकर्दगी भी आपको दिखाते हैं और बासर लोगों का जो कब्रिस्तान पर कब्जा है वो भी हम आपको इस फुटेज में भी दिखाएंगे। मकामी लोग मौजूद है
उनसे भी इस हवाले से जानेंगे। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, बड़ा ऐसा इक़दाम है आपका, करोड़ों अरबों रुपए सुथरा पंजाब में लगा दिए गए आवाम की फलाह व बहबूद के लिए। सुथरा पंजाब की जो हालत हड़प्पा शहर सिटी में मौजूद है, तारीखी शहर में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कैमरामैन आपको दिखाएगा, फुटेज में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कब्रिस्तान के गिरदोनवा कूड़ा करकट गंदगी के ढेर हैं, जगह जगह पर जो ढेर लगाए हुए कचरे के। और सुथरा पंजाब म्यूज़ियम के गेट पर खड़े होकर एक फ़ोटो बनाकर एक फ़ोटो सेशन पर तमाम अजला को चलाया जा रहा है। इसी तरह साहिवाल में हालत है कि सुथरा पंजाब की जो कारकर्दगी है वो आप सामने आपके रखते हैं, वो भी आप ज़रा मुलाज़ा फरमाएं। मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ये तकलीफ़ जानेंगे। एक तो पंजाब हुकूमत कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ पंजाब पूरे में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, लेकिन साहिवाल में जो सरकारी अराजी हैं, कब्रिस्तान हैं, उन पर वैसे ही कब्ज़े हैं। तो ये सवालिया निशान है ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर। मकामी लोगों से जानते हैं। ये कब्रिस्तान हमारे बाअजदाद का है। मेरे दादाजी दफन है, मेरे नाना जी दफन है, मेरे बुज़ुर्ग दफन है, अजीज़ व कारब दफन है, शहरदार मुअज़्ज़ज़ीन दफन है और बासर शख्सियतों के बुज़ुर्ग इधर तदफीन है। ये एक कदीमी कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान का नाम है बाबा। तो उनको ये सोचना चाहिए या अवाम को सोचना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो अब नुकसान हो रहा है वो इदारों को सोचना चाहिए जो कह रहे हैं सुथरा पंजाब। ये हालत है सुथरे पंजाब की। और कब्ज़ा माफिया की ये देख लो, ये कब्रिस्तान है, यहाँ हर बंदे ने आना है और हर बंदा इधर तदफीन है। उसने भी आना है जिसने ये कब्ज़ा कर रखा है। आया कि उसके बाप की जागीर है, उसके पास कोई विरासती इंतकाल है, कोई फ़र्द है, या कि वो फ़रूक नामी आदमी उसने इसको चार दीवारी बना के उसने कहा ये बाउंड्री मेरी है। आया कि उसके पास कुछ सरकारी है, उसके प्यो दादा की विरासती जगह थी जिस पर उसने ये सारी चार दीवारी कर दी। और अब हम लोग यहाँ कब्रें बनवाएं अपने, जो कोई अल्लाह ना करे मौत बर हक के, ज़िंदगी पे शक है। ये देखो इन खड्डों में जो मर जाए इंसान, ये है हमारे ये तो सबसे ज़्यादा तो हड़प्पा म्यूज़ियम वालों को सोचना चाहिए, जो रात को यहाँ से चोरी दरख्त और लकड़े उठा के ले जाते, कोई नलके की निकासी नहीं। ये हमारे नलके की ये हालत है। कोई शरीफ आदमी आज उसे इमरजेंसी वज़ू करना पड़ जाए या कि कोई ऐसा मामलात करना पड़ जाए, या नलका नहीं है। दूसरा ये हड़प्पा के जो है कब्रिस्तान, इस पर कब्ज़ा माफिया नहीं, उससे भी कोई उसे आला दर्जा दिया जाए। ये इंसानी फितरत का तकाजा नहीं है कि जो इंसानियत के रूल में आए। इतना बड़ा ये कब्ज़ा किया हुआ है, वो गरीब आदमी जो जिसका मर जाए वो कहाँ दफनाएगा। जैसा कि नसीम भाई बता रहे थे कि यहाँ पे कब्ज़ा माफिया बुरजमान है कब्रिस्तान पे, तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे क्योंकि एक साइड में रास्ता है और कब्ज़ा होने की वजह से जो जगह है वो कम हो गई है। अब लोगों को दफनाने के लिए रास्ते पे कब्रें बनाई जा रही हैं। ये देखें, अभी आपका शायद आपका कैमरामैन दिखा भी सके, यहाँ पे रास्ते के बीच में दो कब्रें बन चुकी हैं और साथ में ये अगर बारिश आ जाए, बारिश की वजह से वो कब्रें मिसमार हो जाएंगी या वो पानी की वजह से गिर जाएंगी। तो लिहाजा मेरी मरीम नवाज़ से ये अपील है कि ये जो कब्ज़ा माफिया है, अगर आप शहरों में काम कर रही हैं तो देहातों में भी काम करना चाहिए और साथ में कब्रिस्तान पर भी नज़र रखनी चाहिए। मेरे DCO साहिवाल से भी अपील करता हूँ कि ये जो कब्ज़ा माफिया उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि मरीम नवाज़ कब्ज़े ग्रुप वालों के ख़िलाफ़ है, तो ये भी कब्ज़े किए हुए हैं ना। ये कब्रिस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ है, ये भी कब्ज़ा दिलाना चाहिए और पीरा फोर्स को इस पर नज़र करनी चाहिए। DCO साहब को भी देखना चाहिए कि जो इस किस्म के भी कब्ज़ा ग्रुप हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये कब्ज़ा ग्रुप जिन्होंने भी कब्रिस्तान पे ये कब्ज़ा किया है उनसे कब्ज़ा वागज़ार करवा के वज़ीर आला पंजाब में मरीम नवाज़ साहबा और कमिश्नर साहिवाल, DC साहिवाल और पीरा फोर्स को चाहिए कि ऐसे कब्ज़े जो है ना वो ख़त्म होने चाहिए। ये पंजाब में ऐसे बेशुमार कब्ज़े हैं। ये देखें आप, कब्रिस्तान की जगह है, इधर लोगों ने मर के इधर आना आखिरी आरामगाह है, इस पे कब्ज़ा कर रहे हैं लोग। इनको मरना भूल गया है, ये मरना नहीं है इन्होंने इसको। ये हमारे साथ मकामी लोग मौजूद थे, उनका कहना है कि आखिरी हमारा घर, आखिरी आरामगाह ये कब्रिस्तान है। बहुत शुक्रिया, राना सदाम हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िला मानसरा के मैदानी इलाकों में दूसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि शुगरान, नारान, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से सफ़ेद चादर बिछ गई।
دلکش نظاروں کے ساتھ برفباری کے باعث میدانی علاقوں میں شدید سردی کی لہر میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ساہیوال میں LBDC نہر کے کناروں سے قیمتی سایہ دار درخت چوری ہونا معمول بن گئے۔ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تفصیل بتا رہے ہیں رانا صدام حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ LBDC نہر ہڑپا موجود ہے۔ ساہیوال کے گرد و نواح کروڑوں مالیت کے قیمتی سایہ دار درخت جو عرصہ دراز سے کھڑے تھے، جن کو روزانہ کی بنیادوں پر چوری کیا جاتا ہے۔ مقامی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم دن رات دیکھتے ہیں لوگ سر عام درختوں کی کٹائی کرتے رہتے ہیں، چوری کرتے رہتے ہیں۔ محکمہ نہر کے گارڈ، بلاک افسر اور مبینہ طور پر جو SDO ہے جن کو لشاری صاحب کہا جاتا ہے، وہ اس چوری کے دھندے میں ملوث ہیں، ٹمبر مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اور ہڑپا کے گرد و نواح جو ٹمبر مافیا کروڑ پتی بن چکا ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ درخت کون چوری کروا رہا ہے، کس کے آرے پہ جا رہے ہیں، کون بندہ درختوں کی چوری کر کے کروڑ پتی بنا ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے، سوالیہ نشان ہے کارکردگی پر۔ محکمہ نہر کے افسران بھی کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون لاگو ہے ساہیوال میں۔ تمام نہریں خالی ویران ہو چکی ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کا بڑا ایسا اقدام ہے کرائم کنٹرول کے حوالے سے، تو جو درخت چوری ہو رہے ہیں ساہیوال میں، ان کے لیے بھی کوئی فورس بنانی پڑے گی۔ لگتا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اگر آپ تک یہ خبر ہماری پہنچے تو خدا را رحم کریں، جو اہلِ ساہیوال ہیں ان پر درخت چوری ہو رہے ہیں، درختوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، سانس کی بیماریاں لوگوں میں پھیلیں گی۔ تو اس حوالے سے مقامی لوگ موجود ہیں، ان سے جانیں گے، وہ بتاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں اتنی کہ یہ لکڑی جاتی ہے، ریڑیوں پہ ٹرالیوں پہ جا رہی ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ کون لے کے جا رہا ہے، اور ساتھ ہو کے یہ بڑھاتے ہیں، کٹاتے ہیں ان کو اس طرح۔ یہ چار شفیرے دیکھو، ادھر اتنی بڑی بڑی لکڑی تھی کہ جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، یہ لوگ کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، افسر بس دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ اس میں محکمہ نہر کے افسران ملوث؟ ہاں جی، وہ تو ہے جی، ہاں جی، نہر والے سے پہلے بیلدار گارڈ کوئی بھی تو بہت ਵੱਢ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। TV का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बहुत सारे मसलों को बेनकाब किया। यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इनको बेनकाब कर सके। राना सद्दाम साहब का ख़ास तौर पर हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इनको बेनकाब किया। ये ठेकेदार और इंतज़ामिया की मिली भगत से काम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी खबर चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला एक्शन ज़रूर होगा। सर अस्सलाम वालेकुम भाई सदाम साहब, आपका शुक्रिया और स्पेशल TV वालों का भी शुक्रिया। जो एक मुजान नामी है वो गालबन बेलदार है या गार्ड है, क्या है, वो महकमा जंगलात से रिलेटेड है। और जो SDO नहर है लशारी, वो भी इस मामले में रिलेटेड है। ये रात को 6 बजे के बाद लकड़ी काटना शुरू हो जाती है और 9 बजे 10 बजे के राउंड बाउंड RO पे जाके रुक जाता है। ये मकामी लोग थे, उनका कहना है कि टिम्बर माफिया या लकड़ चोर जो हैं वो शाम को सरगर्म होते हैं। 6 बजे से ये कार्रवाई शुरू होती है, सारी रात लकड़ी चोरी होती है और नहर के दोनों किनारे खाली हो चुके हैं। और जो कीमती सायादार दरख्त थे वो तमाम गायब हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, अगर साहिवाल ज़िले का ऑडिट करवाया जाए जंगलात और नहर का, तो करोड़ों रुपए की जो हेर फेर सामने आएगी। जो कीमती सायादार दरख्त हैं वो चोरी हुए हैं। तो इस पर सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है कि ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो अपने बंद कमरों से बाहर नहीं निकलते। बंद कमरों से बाहर निकलें तो उनको पता चले कि क्या हो रहा है। शिकायत करने वाला फंस जाता है, उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई, इंतकामी कार्रवाई हो जाती है। मुतअद्दिद बार निशानदेही कर चुके हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये जंगल है, एक तरफ तो नहर के साइडों पर जंगल लगाया गया है, दूसरी जानब नहर की जो कीमती अराजी है उस पर कब्ज़ा भी मौजूद है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है, कारकर्दगी इदारों की सवालिया निशान ये है कि आज तक कोई ऐसा अफसर मुहिब्बे वतन साहिवाल में, महकमा नहर साहिवाल में कोई ऐसा मुहिब्बे वतन, कोई ऐसा अफसर अब तक नहीं लगाया गया या नहीं लगा कि जो ये करप्शन पकड़ सके। चूँकि वो खुद इस करप्शन में मुलव्वस होते हैं। जो अफसरान आते हैं लाखों रुपए जब दे के आप सीटों पे लगेंगे तो फिर यही हाल होगा। जंगलात का खात्मा मुल्क के पाकिस्तान से, वतन अजीज़ से बेदर्जी से दरख्तों जंगलात का खात्मा किया जा रहा है। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा एक खसूसी नज़र करें। जो जंगलात का खात्मा कर रहे हैं, कातिल हैं जो दरख्तों के, इनके खिलाफ, इनकी सरपरस्ती करने वाले अफसरान के खिलाफ फिलफौर नोटिस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया। राना सद्दाम हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे।
लाहौर पीपी 164 की यूसी 252 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग की जानिब से नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी क़ियादत सदर लेबर विंग लाहौर मलिक काशिफ खोकर ने की। तकरीब का मकसद कारकुनान की जिम्मेदारियों के तयन और अवामी खिदमत को मौसर बनाना था। इस मौका पर मलिक काशिफ खोकर ने कारकुनान को मुतहरिक किरदार अदा करने की हिदायत भी की है, जबकि पीपी 164 और यूसी 248 और 252 के अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तकरीब को तंजीमी फ़ालियत और अवामी खिदमत के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया है। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल गजुमथा में 8 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम कामयाबी से नफ्ज़ किया गया, जो स्कूल इंचार्ज हेड मिस नादिया जमशेद राना और असातिज़ा की काविशों से अपनी मदद आपके तहत मुकम्मल हुआ है। इस इक़दाम से मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स में बिजली की बचत, ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ और माहौलियाती आलूदगी में कमी मुमकिन हो सकेगी, जबकि ये मनसूबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के विजन के ऐन मुताबिक है। ज़िला ननकाना साहब में पब्लिक पार्क्स की ब्यूटिफिकेशन का अमल तेज़ी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने पीर अहमद शाह रोड के पब्लिक पार्क्स का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। अमले की कारकर्दगी को भी सराहा है। इस मौका पर बताया गया कि पार्क्स में नई घास, पौधे, शहरियों के लिए बैठने के इंतजामात, वॉकिंग ट्रैक्स की तामीर, बाउंड्री वॉल्स की तकमील और जानवरों के दाखिले पर पाबंदी यकीनी बनाई जा चुकी है, जबकि डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तज़ीन व आराइश के तमाम काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे और पार्क्स की हिफाजत इंतजामिया और शहरियों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सना शराफत, डीओ इंफॉर्मेशन और सीईओ एमसी भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क में इदारा बराए निफाज इंसानी हुकूक अमरीका के सीईओ डॉक्टर बाबर जॉर्ज भट्टी ने क्रिसमस के मौका पर दुनिया भर में बसने वाले इंसानों को यसू मसीह की विलादत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यसू मसीह ने इंसानियत को प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स दिया है। उन्होंने मसीही कौम से अपील की कि इबादत में मुल्क की बका, अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ करें। डॉक्टर बाबर जॉर्ज भट्टी ने मज़ीद कहा कि क्रिसमस हमें मोहब्बत, माफ़ी और एक दूसरे का ख्याल रखने का पैगाम देता है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही सलाम, दुआ, अदाब और क्राइस्ट इज़ द रीज़न फॉर द सीज़न और मेरी क्रिसमस टू यू ऑल इन एडवांस। आप जहाँ कहीं भी हैं दुनिया के जिस भी कोने में, आपका ये जो सीज़न है और जो आने वाला जो क्रिसमस है और जो नया साल है, खुदा मुझे इसको मुबारक ठहराए, आपको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए और आप ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खुशी का बाइस बने अपने घराने के लिए, बल्कि दूसरों में खुशियाँ बांटने वाले हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज मेलसी कैंपस में साइंस एग्जीबिशन और पेरेंट्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे नौमान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एस्पायर कॉलेज मेलसी में। यहाँ पर जो है साइंस एग्जीबिशन और पीटीएम का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल चौधरी शाहिद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह बच्चों की प्रोग्रेस और वालिदैन के साथ डिस्कशन के लिए आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसके साथ साथ हमने साइंस एग्जीबिशन को भी कंडक्ट किया और बेहद खुशी हुई। आज इस एग्जीबिशन में किंग एडवर्ड से डॉक्टर आरिफ साहब, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से डॉक्टर फैसल साहब और बहुत सारे मेहमान यहाँ पे पेरेंट्स जिन्होंने विज़िट किया हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स, जिन पे उन्होंने साइंस मॉडल्स बनाए, जहाँ पे ब्लाइंड स्टिक का एक मॉडल था, होम ऑटोमेशन था और इससे रेलिवेंट बहुत सारे मॉडल्स थे जिनको अप्रिशिएट किया गया बच्चों के एफर्ट्स को। और मेरी ये कोशिश है कि जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स, हमारे तलबा एकेडमिक्स में अपनी वैल्यूज़ में एडिशन करते हैं, इसी तरह एकेडमिक्स के साथ साथ प्रैक्टिकली भी अपने आप को इन करें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल प्ले करें। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जिस तरह मुख्तलिफ स्टॉल पे बच्चों ने अपने मॉडल्स पेश किए, ये आने वाला वक्त जो है हमारे ही बच्चों का मुस्तकबिल होगा और पाकिस्तान का जो है रोशन मुस्तकबिल हमारे आज के बच्चे हैं। जी बहुत शुक्रिया नौमान खान, हमें अपडेट कर रहे थे। तिरंडा मोहम्मद पनाह में महाजिर कॉलोनी इलाहाबाद में सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से अहले मोहल्ला और बच्चे गंदे पानी का शिकार है। ये सब आखिर क्या मामला है, हमें आगाह कर रहे हैं सैयद तारिक शाह। जी, आज हम मौजूद है तिरंडा मोहम्मद पनाह के नुहाई इलाके इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद शहर की एक कॉलोनी है, महाजिर कॉलोनी इलाहाबाद।
تو यहाँ पे ये एक मसला है जिस सीवरेज की वजह से लोगों के यहाँ जो मकानात है वो गिरने लग गए हैं, मकानों को बहुत नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे जो गली के अंदर है वो पानी खड़ा रहता है, यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं और काफ़ी दफ़ा तो ये हुआ है कि स्कूल के बच्चे यहाँ पानी में गिर चुके हैं। तो ये यहाँ अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये सीवरेज जो लाइन है ये कब की बंद है और किस तरीके से यहाँ पे बल्दिया ने जो म्यूनसिपल कमेटी वाले हैं वो आते हैं या नहीं आते, ये क्यों इनके पास जो पानी है वो खड़ा हुआ है और ये सीवरेज लाइन क्यों बंद है। जी आप हमें ये बताएं कि जो सीवरेज लाइन है ये यहाँ जो ये गंदगी का पानी खड़ा हुआ है ये कितने अरसे से खड़ा हुआ है और कब तक है, कब से है ये, और यहाँ कोई कमेटी वालों से आपने कोई दरख्वास्त की है, कोई आए या नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसा तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, ये पानी गंदा ऐसे ही भरा हुआ है, हमें बहुत तकलीफ़ है। मस्जिद में जाने के लिए, नमाज के लिए बड़ा मसला है। बार बार म्यूनसिपल कमेटी, यूनियन कौंसल बार बार गए, हम लोग टाउन कमेटी गए, जो वो कह रहे हैं जो बंदा भेजते हैं, गाड़ी आती है, गाड़ी आज तक गाड़ी नहीं आई। 1 माह हो गया है, ये पानी ऐसे ही भरा हुआ है, बच्चे गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। ठीक है, गली से 1 महीने से बंद ही, पूरा रास्ता हमारा बंद हुआ पड़ा है। बाला अफसर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम दरख्वास्त देते हैं, मेहरबानी की जाए, ये हमारी सीवरेज लाइन का मसला हल किया जाए। ये खोलनी है, सीवरेज लाइन अंदर बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ बंद होने की वजह से पानी है, ये खुल जाएगी उसके बाद रास्ता क्लियर हो जाना है, हमारा ही मसला हल किया जाए। जी जैसा कि आपने देखा जी, अब हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये यहाँ पे जो पानी खड़ा हुआ है और जो गंदगी है यहाँ पर, जहाँ बच्चों को और साथ अहले मोहल्ला जो यहाँ पे तंग होते हैं आने जाने के लिए, वो आप ज़रा देख सकते हैं कि गली का भी जो है वो भी आप देख लें कि जो यहाँ सूरत हाल है यहाँ पे कि इंतहाई यानी कि गुजरने की भी जगह यहाँ पर नहीं है। जी इनके आला हुकाम से मुतालबा है कि इनका जो ये सीवरेज का और ये जो लाइन बंद हुई है इसको खोला जाए। जी सैयद तारिक शाह हमें अपडेट कर रहे थे। सियालकोट शहर में ट्रैफिक के मसाइल संगीन हो गए। डीएसपी ट्रैफिक मुबशिर की कारकर्दगी पर शदीद सवालात उठने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि हैवी ट्रैफिक की वजह से अहम शाहराहें मछली बाजार का मंजर पेश कर रही हैं और दिन के औकात में भी ट्रैफिक कंट्रोल न होने के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने आईजी पंजाब और आरपीओ से मुतालिबा किया कि नाअहल डीएसपी सिटी ट्रैफिक को फौरी तौर पर हटाया जाए। कक्कड़ इंडस हाईवे से निकलने वाली लिंक रोड जो कैडेट कॉलेज कक्कड़ के करीब से गुजरती है जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और साल 2022 से नाकारा होने के बायस 30 से 40 गाँव के रिहायशी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक इस रोड के ज़रिए कई देहात शहर और कैडेट कॉलेज से जुड़ते हैं और मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों और आला हुकाम से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर इस लिंक रोड की मरम्मत और बेहतरी का काम शुरू किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात ख़त्म हो सकें। जामशोरा में लूनी कोट थाने पर एसएचओ नूरियाबाद सुलेमान लशारी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुकदमा आसिफ बरोही की मुद्दत में दर्ज किया गया जो कि N9 मोटरवे पर एसएचओ नूरियाबाद की गाड़ी के पीछा करने और टक्कर मारने से नौजवान हमीदुल्लाह बरोही की हलाकत के इल्ज़ाम से मुतलिक हैं। वाक़े के दौरान मकतूल और उसके साथी कराची से शहदाद कोट शादी की तकरीब में जा रहे थे कि एसएचओ नूरियाबाद और दीगर एहलकारों ने सिविल कपड़ों में पीछा किया, गाड़ी से निकालकर हमीदुल्लाह बरोही को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और गन के बट मारे। एसएसपी जामशोरा ने वाक़े पर एसएचओ नूरियाबाद को मुअत्तल करके लाइन हाजिर किया और डीएसपी कोटरी को इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। सेवन शरीफ में नाथा फाउंडेशन और शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर सेवन शरीफ की जानिब से चेयरमैन रमज़ान नाथा की निगरानी में फ्री आंखों की ऑपरेशन कैंप मुनक्किद हुआ जिसमें 60 से ज़ायद मरीज़ों के मुफ्त ऑपरेशंस और टेस्ट भी किए गए और चश्मे भी फराहम किए गए। चेयरमैन रमज़ान नाथा ने खिदमत के साथ कराची में बदअमनी और करप्शन पर तशवीश ज़ाहिर की और आवाम से अपील की कि नफ़रत और फ़िरक़ा वारियत से दूर रहते हुए मुत्तहिद होकर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो एक खास लहर जो है सूबों के नाम के ऊपर जो है नफरतें पैदा हो रही हैं, कौमियत के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, तो ये एक आलमी दहशतगर्दी है जो हमें आपस में तकसीम करते हैं। हम एक पाकिस्तानी कौम है, कोई पठान, सिंधी, महाजिर,
बलोच, पंजाबी, कोई ऐसी नफरत नहीं है और हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हुकूमती सतह के ऊपर इस वक्त में एक और मजम्मत पेश करना चाहूँगा आप लोगों के तवज्जुह से कि ये कराची के अंदर इस वक्त गटर के अंदर बच्चे डूब के मर रहे हैं, रोडों के हाल खराब हैं, कारोबारी हजरात के साथ इस वक्त बत्ता पर्ची और इतना मसला है कि कारोबार बंद हो रहे हैं। कराची एक गरीब परवर शहर है, इसके अंदर जो है कराची वाले इस वक्त रोडों की वजह से स्कूल्स, हॉस्पिटल वही है, नाम बदल के आप उसके अंदर तख्तियां लगा रहे हैं, वही ग्राउंड है जिनके बजट्स खा जाते हो, तकसीम होने से बचाएं और इसे बनाएं। कराची शहर बनेगा, कभी भी जल्जले, तूफान, सैलाब जब भी आए हैं तो बढ़ चढ़ के कराची वाले जो हैं पूरे पाकिस्तान की मदद के लिए निकलते हैं। तो अब कराची के हालात खंडात जैसे हो गए हैं और खास कारोबारी तबका बहुत तेजी से बाहर भाग रहा है, पढ़ा लिखा तबका आपका बहुत सारा बाहर भाग रहा है। तो खुदारा इसके लिए जो है ना आप कोशिश करें, जो बाला हुकाम है, चाहे वो जुडिशनली है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, कि ऐसे लोगों को जो सियासी तौर के ऊपर बजट्स खा रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं मुल्क को, तो परवरदिगार करे कोई अच्छे हुक्मरान आ जाए और इस पाकिस्तान को बनाए। बस शुगर, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, दुनिया कहाँ चले गई है। आप हॉस्पिटलों के नाम पे इतने झंडे गाड़ रहे हैं, सीएम का शहर है और लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर का बेचारों को पता नहीं है, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है। पाकिस्तान बाकी उसके बाद हमारी कौमें या वो हम कौम के हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए और हमें मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, हक़ अदा करना चाहिए। हमारे पास शिया, सुन्नी, अहले हदीस ये सब नहीं होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ कलमा गो मुसलमान होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हम टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा कमा के देने वाला शहर है कराची, तो कराची को उसका हक़ दें और हमारे कराची को भी जो ये सड़कें टूटी-फूटी और ये जो है और सब उसका जो मुकाबला लंदन और ब्रिटिश से कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उसको उस काबिल बनाए, फिर उसके बाद करें। ऐसा ना हो कि पंजाब से भी हम मुकाबला ना कर सकें। खूबसूरत पंजाब बन रहा है, इतना ही कम अज़ कम हमारी सड़कों को तो मजबूत करें। बहुत सारी ऐसे हमारे कराची शहर में जो है ऐसा हुआ है कि जो प्रेग्नेंट औरतें जिनकी डिलीवरी डेट ड्यू है और वो हॉस्पिटल जा रही हैं, रक्षा में ही बेबी बॉर्न हो गया है, तो इस तरह से कराची के हालात ना करें। रानीपुर में अवामी प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारान और मेंबरान के एजाज़ में मुल्ला बरादरी की जानिब से अहमदपुर मोहल्ला में शानदार और यादगार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी की रिपोर्ट में। अवामी प्रेस क्लब रानीपुर के एजाज़ में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। रानीपुर में अवामी प्रेस क्लब के नौ मुंतखब अहदेदार और मेंबरान के एजाज़ में मुल्ला बरादरी की जानिब से एक शानदार पुरवकार यादगार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब अहमदपुर मोहल्ला रानीपुर में मुनक़द हुई, जिसमें शहर के मौजूद शख्सियात, सहाफ़ी बिरादरी और समाजी रहनुमाओं ने बड़े तादाद में शिरकत की। तकरीब का एहतमाम नूर अली मल्ला, उस्ताद अला बचायो मल्ला, जवार शौकत अली मल्ला, अज़हर अली मल्ला, बाबर अली मल्ला, एडवोकेट नदीम अली मल्ला, हमीद अली मल्ला, अली रज़ा मल्ला, जिनसार अली मल्ला, इज़्ज़त अली मल्ला समेत मल्ला बिरादरी के दीगर मौजूद शख्सियात ने किया। तकरीब के दौरान मल्ला बिरादरी के सरबराह उस्ताद अला बचायो ने अवामी प्रेस क्लब रानीपुर के सदर साजिद अली करबलाई अंसारी को सिंध की सकाफ़त की अलामत सिंधी टोपी और पगड़ी पहनाई, जबकि नूर अली मल्ला ने सदर को अजरक और फूलों के हार और यादगारी तोहफ़ा पेश किया। इस मौके पर प्रेस क्लब के तमाम अहदेदार और मेंबरान को भी अजरके और फूलों के हार पहनाए गए, जिससे तकरीब का माहौल इंतहाई खुशगवार हो गया। तकरीब में अवामी प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मियाँ फ़िदा हुसैन पीरज़ादो, अलमारूफ अली हैदर शाह बादशाह, वर्किंग कमेटी के चेयरमैन उस्ताद जावेद अली मल्ला साहब, जनरल सेक्रेटरी ज़ैगम रज़ा मुगल, सीनियर नायब सदर मियाँ एजाज अली अब्बासी, नायब सदर नवीद अली सुमरो, डिप्टी सेक्रेटरी ज़फ़र अली खासकेली, जॉइंट सेक्रेटरी इमाम बैग शाहानी, प्रेस सेक्रेटरी वसीम खान, फना सेक्रेटरी आमिर हुसैन सोलंगी, ऑफिस सेक्रेटरी जाहिद हुसैन हिंगोरो समेत दीगर मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर अवामी प्रेस क्लब रानीपुर के साजिद अली करबलाई अंसारी ने मल्ला बिरादरी का दिल के गहराइयों से शुक्र अदा करते हुए कहा कि अवामी प्रेस क्लब हमेशा शहरियों के हकूक़, मसाइल और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहा है और करता रहेगा।
उन्होंने कहा कि ऐसी मोहब्बत भरी तनक़रीबात सहाफ़ियों और आवाम के दरमियान एतमाद, भाईचारे और इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाती है। आखिर में सरपरस्त आला मियाँ फ़िदा हुसैन पीरज़ादा ने खुसूसी दुआ करवाई, जिसमें रानीपुर शहर के अमन, तरक्की, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गई। दुआ के बाद मेहमानों के लिए पुरतरकीफ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। उस खूबसूरत तनक़रीब का एहतमाम खुशगवार माहौल में हुआ। कैमरामैन तस्लीम दायो के साथ अब्दुल क़य्यूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़ रानीपुर। आप देख रहे थे अब्दुल क़य्यूम अंसारी की रिपोर्ट। स्पेशल टीवी से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल टीवी।